Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Ijaz Hussain for chemistry grade 8. Today we will discuss lecture number 21. The topic is molecular mass and formula mass on your book page number 23 and 24. Molecular mass and formula mass, page number 23. You know, molecule is the combination of atoms. Different type of atoms combine to form a molecule. Now, molecular mass is the sum of the relative atomic masses of all the atoms present in the molecule. शाबाश, इसको अंडरलाइन करें. कर लिया. इसको अंडरलाइन करें. दैट इज़ डिफिनीशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास. आपको पता है कि मॉलिक्यूल जो है ये एटम से बना होता है. अब जितनी भी एटम्स एक मॉलिक्यूल में हो, अब उन सारे एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मासेस प्लस करें और उससे जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल. समझ आ गई? आपके पास एक मॉलिक्यूल है. मॉलिक्यूल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. नाउ द सम ऑफ the relative atomic masses of all these atoms which are present in that molecule, that is equal to the molecular mass. That is equal to the molecular mass. Molecular mass of a substance can be calculated by adding relative atomic masses of all the atoms in one molecule of the substance. एक मालिक्यूल के किसी सब्सटेंस किसी कंपाउंड के एक मालिक्यूल में जितनी भी एटम्स हैं उन एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस ले ले, उनको आपस में प्लस करे. इससे जो सम आएगा, उससे जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज़ इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट molecule of a chemical compound. Is it clear? No. For example, molecular mass, molecular formula of ethane is C2H6. आपको पता है इथेन का molecular formula क्या है? C2H6. क्या है? C2H6. 2 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen combined to form a molecule of ethane. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकालेंगे, इसके नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे. इससे जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन. अब आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? दैट इज़ 12. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 1. क्लियर? नो. What is the formula? Molecular mass of ethane can be calculated by this formula. The number of atoms of carbon that is 2. 2 number of atoms of carbon multiplied by atomic mass of carbon plus 6 number of atoms of hydrogen multiplied by atomic mass of hydrogen. You know 2 multiplied by 12. 12 is the atomic mass, relative atomic mass of carbon. Now 6 is the number of hydrogen atoms and 1 is the relative atomic mass of hydrogen. Now 2 multiplied by 12 plus 6 multiplied by 1 that is equal to the sum. 2 multiplied by 12 that is equal to 24 and 6 multiplied by 1 that is equal to 6. Now 24 plus 6 that is equal to 30. 30 AMU. The molecular mass of ethane is 30. Is it clear? Molecular mass of benzene. अब बेंजीन का केमिकल फार्मूला लिख ले. द केमिकल फार्मूला बेंजीन इज C6H6. How many atoms of carbon are present in benzene? That is 6. How many atoms of hydrogen are present? That is 6. Now atomic mass of relative atomic mass of carbon that is 12 AMU. क्या है? 12 AMU. And relative atomic mass of
hydrogen, that is 1 AMU. Now molecular mass of ethane, molecular mass of ethane, molecular mass of benzene, बेंजीन की बात कर रहे हैं, molecular mass of benzene C6H6 that is equal to, अब हम फार्मूला इसमें पुट करेंगे, फार्मूला क्या है, इधर आए 2, यहाँ पे बेंजीन कार्बन कितने हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। अब इसमें इसकी वैल्यूज पुट करें, 6 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 72 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 6, 72 को 6 के साथ प्लस करें, आपके पास क्या आएगा, दैट इज 78। इसके साथ यूनिट लेके मॉलिक्यूलर मास के साथ यूनिट लेके, दैट इज़ AMU, एटॉमिक मास यूनिट। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज 78। Molecular mass is related with molecular compound and molecular compound is related with कोवेलेंट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसको कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। तो जितनी भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसकी हम मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे, लेकिन अगर आयोनिक कंपाउंड हो तो आयोनिक कंपाउंड की फिर हम फार्मूला यूनिट होता है, इसलिए फार्मूला यूनिट को हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी फिर फाइंड करेंगे फार्मूला मास। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फार्मूला मास। What is formula mass? Formula mass is the sum of the atomic masses of ions or atoms present in the फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। बिल्कुल वैसी ये है, बिल्कुल वैसी मेथड भी, इसकी फाइंडिंग की मेथड भी बिल्कुल सेम है, जिस तरह मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जिस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला की हैं, इसी तरह फार्मूला यूनिट की भी है, उसका भी इसी तरह आप फार्मूला मास फाइंड कर सकते हो, जिस तरह आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया। फ़र्क क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस एटम्स की बात करते हैं जो मालिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, और फार्मूला यूनिट में हम क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस आर एटम प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड। फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पे हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे, बाकी सब कुछ वही है। फॉर एग्जांपल NaCl आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है। अब आयोनिक कंपाउंड की हम फार्मूला मास किस तरह फाइंड करेंगे, NaCl इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, इस तरह KCl भी आयोनिक कंपाउंड है। अब इसकी किस तरह फाइंड करेंगे, फार्मूला मास ऑफ KCl, NaCl और KCl दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। नो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज़ 23 एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दैट इज़ 35.5। अब दोनों को 1 1 से मल्टीप्लाई करें, सेम वैल्यू आएगी, दोनों को प्लस करें, जब दोनों को प्लस करें दैट इज़ 58.5 AMU एंड दैट इज़ द फार्मूला मास ऑफ NaCl। NaCl का फार्मूला मास क्या होगा, 58.5 AMU। बिल्कुल एज इट इज़, जिस तरह आप मालिकुलर मास फाइंड करते हो एक मालिकुलर कंपाउंड की, इसी तरह आप फार्मूला मास फाइंड करते हो एक आयोनिक कंपाउंड की। बात सिर्फ ये है कि इसमें हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें हम आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे। इज़ इट क्लियर? नो फार्मूला मास ऑफ KCl, फार्मूला मास ऑफ KCl इज़ पोटाशियम क्लोराइड, इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। अब आप देख ले, उसी तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। किस तरह फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम दैट इज़ 39 एंड क्लोरीन दैट इज़ 35.5। तो आप फार्मूला मास किस तरह फाइंड करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ
क्लोरीन। इज इट क्लियर? अब इसमें वैल्यूज पुट कर दे। 1 मल्टीप्लाइड बाई 39, पोटाशियम का क्या है 39 है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 35.5। क्लियर? नो 39 प्लस 35.5 दोनों को प्लस करें, इससे जो भी वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। दोनों को प्लस करें, आपके पास आएगी 74.5 AMU। AMU दैट इज़ द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। इसी तरह आप डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स की फार्मूला मास फाइंड कर सकते हो। क्लियर? नो एग्जाम्पल 1.2 पेज नंबर 23। एग्जाम्पल 1.2 में क्या कहते हैं? कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ एमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO3 एमोनियम सल्फाइड एंड आयरन नाइट्रेट FeNO3 होल ट्वाइस। इसकी हम फाइंड करेंगे फार्मूला मास। एमोनियम सल्फेट की अगर आप देख ले कितनी एमोनियम है टोटल, तो एमोनियम सल्फेट में कितनी नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 इससे टोटल 28 आता है। और टोटल कितने हाइड्रोजन है इसमें 2 4 ज़ा 8, टोटल 8 हाइड्रोजन है। तो 8 multiplied by 1 is the relative atomic mass of hydrogen that is equal to 8। इससे क्या आता है 8 आता है। अब टोटल कितने सल्फर है, एक सल्फर है और सल्फर का एटॉमिक मास क्या है 32 है। अब 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगी 32। अब ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 3 ऑक्सीजन है। अब 3 ऑक्सीजन है और इसका एटॉमिक मास 16 है। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 3 16 ज़ा 48, टोटल 48 आएंगे। अब इन सारे फिगर्स को आपस में प्लस करें बिकॉज फार्मूला मास इज़ द सम है, तो इसको प्लस करें। जब इसको प्लस करें तो इससे आता है 116 AMU। दैट इज़ द फार्मूला मास ऑफ एमोनियम सल्फाइड। एमोनियम सल्फाइड इसका नाम क्या है, केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है एमोनियम सल्फाइड। एमोनियम सल्फाइड नोट करें अपने साथ, शाबाश यहाँ पे लिखें एमोनियम सल्फाइड। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ फेरस नाइट्रेट। इसका नाम क्या है फेरस नाइट्रेट। फेरस नाइट्रेट में एक आयरन है, आयरन का एटॉमिक मास जो है दैट इज़ 56। अब 1 मल्टीप्लाइड बाई 56 इज इक्वल टू 56। अब कितने नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 तो इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं 6 ऑक्सीजन है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 16 दैट इज इक्वल टू 96। अब इन सब को प्लस करें तो इससे आएगा फार्मूला मास ऑफ फेरस नाइट्रेट इज़ 180 AMU। क्या आएगा 180 AMU। आप इसी तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। और इससे पहले जो मैंने आपको मेथड बताया था ये वाला मेथड अगर आसान लगे तो इसी से भी आप कर सकते हो, और इससे पहले वाला मेथड जो मैंने आपको बताया था आप उसी से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं एमोनियम सल्फाइड नेम मैंने लिख दिया है, ये इसका फार्मूला है। अगर आप उसी पे कर ले तो मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास ऑफ एमोनियम सल्फाइड दैट इज़ इक्वल टू, अगर आप इस तरह करें दैट इज़ इक्वल टू वन, आपके पास कितने नाइट्रोजन है 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस कितने हाइड्रोजन है टोटल आपके पास 8 हाइड्रोजन है। 8 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस आपके पास कितनी सल्फर है 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस आपके पास कितनी ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है। 3 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब इसमें वैल्यूज पुट कर दे।
नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं 8 है 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 32 सल्फर का क्या है 32 है प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 क्लियर। अब इससे आएगा 28 इससे आएगा 8 इससे 32 और इससे 48। अब तीनों को प्लस करें जब तीनों को प्लस करें इससे आता है 116 AMU that is the formula mass of ammonium sulfide क्लियर। इसी तरीके से आप दूसरा वाला भी फाइंड कर सकते हो द फार्मूला मास ऑफ फेरस नाइट्रेट जो ऑलरेडी आपके बुक में एग्जाम्पल 1.2 में पेज नंबर 23 पे दिया गया है। आप वही चीज़ें इस फार्मूला में पुट करके आप इसको फाइंड कर सकते हो। आपके लिए फिर आसानी होगी। अगर ये फार्मूला आपके लिए आसान हो तो आप इसी तरह भी कर सकते हो और एग्जाम्पल 1.2 में जो दिया गया है आप उसी तरह भी इसको फाइंड कर सकते हो द फार्मूला मास ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड क्लियर।